Okay, so let's get started. So today we will discuss a few questions of vowel ability. Okay, so firstly we will discuss some important courses for kids, and here are the courses. First one is C for beginners. Okay, this course started. This course started on 2nd of July. Okay, and you will get lifetime access for this course. Just register and purchase this course if you want to improve your knowledge for C. So second course is Java for beginners. So this course will deal with Java language. Okay, so you can purchase this course, and this course is also started on 2nd of July, and with lifetime access you will get this course. So you can see details, and you will get a link in the description box for these courses. Third course is web lab projects. This started at on 31st May with the lifetime access, and this is course for beginners who want to make projects, okay, in web lab. So they can purchase it, and this course, all the courses are discussed in basic to high level. Okay, so you can go through these courses if you want to improve your C language, Java language, and web lab projects. Next one is computational thinking with Scratch. So you can also purchase this course. It was started on 30th May, and this course have a lifetime access. You can go through the course, do register yourself for the course, and purchase it. Next course is learn to make apps in App Lab. So you can learn how to make apps in App Lab through this course, and basic to high level questions are discussed in this course. Okay, and the course price is rupees 299, and this was started on 15th May, and course has lifetime access. You can register it for this course. Next course is create game in Game Labs. So you can create games, okay, in Game Labs, and this course started on 1st of May with lifetime access. You can go through this course if you are interested to create games. Okay. Next one is create real world apps in App Labs. So you can also create. We have two courses related to App Lab. First one is learn to make apps in App Lab, and second one is create real world apps in App Lab. Okay, so this is the second course, and it started on 16th April, and this course also has lifetime access. You can go through the course. You will get links in the description box for these courses, and purchase it and take benefit from this course. Next course is machine learning with the help of Scratch. So you can purchase this course, and this course started on 26th of April with the lifetime access. Okay, so register yourself for this course and purchase it and take benefit of these courses. Next one is web design. Web designing for beginner. This one is the important one. You can design your website through this course or using HTML. Okay, and the price for this course is 399 rupees. And in this course, you will get concepts from basic to high level. Okay, you will have certain number of questions to solve them, and you this course started on 15th of April, and it also has lifetime access. So you can see this, that every course has lifetime access. This is the important thing. Okay, purchase once and study through these courses lifetime. Okay, so purchase it as soon as possible. Next course is Python programming. This is also for school students, so you can learn Python program in detail. Okay, and the price for the course is 299 rupees. It was started on 9 Feb, and this course also has lifetime access. So if you want to learn programming, then this course is the best one for you. So you can purchase it. Link will be in the description box.
Next course is first step to data structure and algorithms. Okay, so this was started on 15th of June. So do purchase it and take benefit from this course. And the last course is entrepreneurship, how to build massive valuable companies. This one is the best one. Okay, it was also started on 15th June. Okay, and you can register yourself for this course and you can take benefit for this from this course. Okay, so these are the courses for kids. You can purchase these courses and you can take benefit from these courses. सो आज का जो सेशन है वो है आपका वर्बल एबिलिटी पे. कुछ आपके 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. ओके, वर्बल एबिलिटी के 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. और ये क्वेश्चंस आपके एक टॉपिक है. कौन सा टॉपिक है आपका? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. तो ये जो टॉपिक है वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है और ये सारे क्वेश्चन आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट टॉपिक से रिलेटेड होंगे. सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं. फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 15 डायरेक्शन है हमारा, विच ऑफ द फ्रेजेस A, B and C given below should replace the phrase given in bold in the following sentence to make the sentence grammatically correct. If the sentence is correct as it is and no correction is required, mark D as your answer. ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है. और जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो है आपका, बाय 2030 इंडिया वुड हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पे जो आपको इम्प्रूवमेंट करना है वो किस में करना है? आपको वुड में इम्प्रूवमेंट करना है. ओके, वुड के लिए यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए, ए विल, बी शुड, सी शैल और डी नो इम्प्रूवमेंट. तो क्या आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे? वुड के प्लेस में क्या आना चाहिए? विल आना चाहिए, शुड आना चाहिए, शैल आना चाहिए, या फिर वुड सही है यानी आपका नो इम्प्रूवमेंट. चलो, विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर? 60 सेकेंड से सभी के पास आंसर करिए. अभिजीत विद डी. ओके, तो देखो बाय 2030 की हम बात करें तो अभी एट प्रेजेंट क्या है भाई? 2021 है. जो 2030 है वो कब का टाइम है भाई? आपका फ्यूचर का टाइम है. किसका टाइम है? फ्यूचर का टाइम है. बाय जो प्रपोजिशन होता है ना, ये टाइम को बताने के लिए भी यूज होता है, आपको बताना. और जो बाय के बाद टाइम लिखा होता है ना, डेडलाइन होता है. ठीक है, और ये जो डेडलाइन होता है ये किसका रिप्लाई होता है? व्हेन का रिप्लाई होता है. किसका रिप्लाई होता है? व्हेन का रिप्लाई होता है. ये आपको ध्यान रखना है. ओके, इंडिया आपका सब्जेक्ट है. वुड हैव बिकम आपका क्या है? वर्ब फ्रेज है टोटल. ओके, वुड हैव बिकम व्हाट? द मोस्ट पॉपुलस कंट्री. ये जो आपका द मोस्ट पॉपुलस कंट्री लिखा हुआ है ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है. किसका? बिकम वर्ब का, मतलब है वुड हैव बिकम का. इन द वर्ड जो है आपका वेयर का रिप्लाई मीन्स ये क्या आपका? एडवर्ब है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका बाय 2030 है तो हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं. और जो वुड है वो हम नहीं यूज करते. अगर फ्यूचर टेंस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे विल शैल हम यूज करते हैं. इंडिया थर्ड पर्सन है तो इसके साथ हम क्या करेंगे? विल यूज करेंगे. ओके, तो आपका ए ऑप्शन जो होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा. कौन? अभिजीत. ओके, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट. क्लियर है? तो विल आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. चलो, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. डू यू नो टू whom राज इज गोइंग टू मैरी? तो ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ये वाला पार्ट. इस पार्ट में आपको क्या बताना है? अगर आपका इस पार्ट में कोई करेक्शन नहीं चाहिए तो डी मार्क करो.
और अगर ये पार्ट आपको लग रहा है कि गलत है तो आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं ABC, इनमें से कोई ना कोई आपको ऑप्ट करना है। 60 सेकेंड्स का टाइम है इसके लिए भी। चलो फटाफट कमेंट कर दो अभिजीत और जो भी यहाँ प्रेजेंट है। प्रोनाउन का ये क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करें 60 सेकंड से। विनीता विद सी, ओके। क्या हो जाएगा इसका भाई? अभिजीत विद सी, ओके। सो आंसर्स मिल रहे हैं मुझे और सी ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो डू यू नो हमने लिखा है यहाँ पे, तो यू आपका क्या सब्जेक्ट है, नो आपका क्या वर्ब है। जो भी चीज यहाँ पे लिखी होगी वो वर्ड का रिप्लाई होगा और वो क्या होगा, नो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका लिखा हुआ है राज इज गोइंग टू मैरी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राज इज गोइंग टू मैरी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, जो मैरी वर्ब होता है ना ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो इसके बाद जो भी चीज लिखी होगी वो इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यानी आपका नाउन होगा या फिर आपका प्रोनाउन होगा, डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टू होम लिख दिया, तो ये जो होम है ना ये टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब हम ये लिखना चाह रहे हैं राज इज, क्या लिखना चाह रहे हैं हम लिखना चाह रहे हैं भाई राज इज गोइंग टू मैरी टू होम, ये लिखना चाह रहे हैं। टू होम को उठा के एक बार यहाँ पे एज्यूम करो इस तरीके से, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैरी तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद आपका नाउन है प्रोनाउन डायरेक्ट लिखा होना चाहिए, मतलब आपका टू यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका ऐसे होता होम, राज इज गोइंग टू मैरी होम, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि होम आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा मैरी का। तो इसका मतलब है होम से आपका स्टार्ट होना चाहिए था, टू होम से नहीं। और हु तो होगा नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे सब्जेक्ट तो चाहिए नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। और ये भी हु है तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट तो दिया हुआ है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट तो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो चाहिए नहीं हमें, ओके। और यहाँ पे आपका ये मैरिड है, तो मैरिड यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो टू इसका ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, सॉरी होम इसका ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, क्योंकि मैरिड तो एडजेक्टिव है। अगर मैरिड एडजेक्टिव होता है तो वहाँ पे हम टू यूज करते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट का। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। तो होम राज इज गोइंग टू मैरी हो जाएगा इन प्लेस ऑफ टू होम राज इज गोइंग टू मैरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे सभी लोग। दे वर एंग्री बिकॉज दे रियलाइज दैट दे हैव हैड बीन चीटेड, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना है, 60 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ये आपका अंडरलाइन पार्ट है, इसको आपको चेंज करना है। चलिए फटाफट आंसर करिए जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट है प्लीज। नितिन का डी है, ओके। किसका डी है नितिन? प्लीज क्वेश्चन भी मेंशन करें, ओके। अगर आप थर्ड का आंसर कर रहे हैं देन प्लीज मार्क थर्ड का डी, ओके। थर्ड डॉट डी या 3D कुछ भी लिख दो, लेकिन पता चले कि भाई कौन से का आंसर कर रहे हो, ठीक है, वो सही रहता है। दे वर एंग्री, ओके। दे आपका क्या सब्जेक्ट है, ओके। वर आपका क्या है, वर्ब है। कैसी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, तो एंग्री हमने यूज कर रखा है एज एन एडजेक्टिव। दे वर एंग्री वाई, ठीक है। तो ये बिकॉज के बाद आपका रीजन है, बिकॉज क्या कंजक्शन है और ये क्या कर रहा है, एक क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है। इस क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो दे है, रियलाइज आपका वर्ब है, दे रियलाइज वट। एक और क्लॉज से हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, दैट आपका अनदर
कंजक्शन है, दे आपका सब्जेक्ट है, हैव हैड बीन चीटेड ये आपका वर्ब है। ओके, तो हैव हैड बीन चीटेड, ओके, तो ये तो सरासर बदतमीजी है, क्योंकि हैव हैड बीन चीटेड कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर हमें यूज करना ही है तो हम यूज करेंगे हैड बीन चीटेड, हैव हैड बीन चीटेड थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये जो हैव है इसे रिमूव कर दो, ओके। तो ये हो जाएगा आपका हैड बीन चीटेड, यानी आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्यों? क्योंकि वो एंग्री पास्ट में है, तो ऑब्वियस सी बात है जो उन्हें धोखा दिया गया होगा वो पास्ट से पहले वाली बात होगी। पास्ट से पहले वाली बात यानी आपका पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट किस में होता है? आपका पास्ट परफेक्ट में होता है। चीट किसी और के द्वारा किया गया था तो वो पैसिव वॉइस में बनेगा, तो इट शुड बी हैड बीन चीटेड, और ये आपको क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। वर चीटेड भी आपका पैसिव वॉइस है, बट वर चीटेड हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, वो भी सीक्वेंस में। पहले चीट होने वाला एक्शन है, दूसरा एंग्री वाला। तो जो पहला एक्शन है वो आपका पास्ट ऑफ पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट में होता है। पैसिव में तो है लेकिन ये सीक्वेंस नहीं बता पा रहा। आर चीटेड हो ही नहीं सकता है क्योंकि जब वो पास्ट में एंग्री है तो भाई प्रेजेंट में थोड़ी चीट हुआ होगा उनके साथ, ऑब्वियस सी बात है पास्ट में चीट हुआ होगा, तो ये तो आर चीटेड होगा ही नहीं। इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है ही क्योंकि हैव के बाद हैड और उसके बाद बीन चीटेड नहीं हो सकता, ओके। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन ऑफ फोर्थ। क्या है होगा फोर्थ का? 1 मिनट, 1 मिनट दे आर ऑल स्वीट बट केयरिंग एंड द नेक्स्ट मिनट दे स्टैब यू इन द बैक। क्वेश्चन ऑफ फोर्थ का आंसर करेंगे, चलिए। क्वेश्चन ऑफ फोर्थ का आंसर करें अभिजीत, विनीता, नितिन, जो भी बाकी लोग यहाँ प्रेजेंट है सभी लोग आंसर करें 60 सेकेंड से। नितिन थर्ड का, थर्ड नहीं फोर्थ का आंसर करो आप। एक बार आप बैक जाके दोबारा रिफ्रेश करें, आई थिंक आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो स्लो है और शायद वीडियो है वो जो लेट चल रहा है आपके डिवाइस पे। नितिन फोर्थ का आंसर करें, फोर्थ का बी मुझे आंसर मिल रहा है, ओके। विनीता विद बी, अभिजीत बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 1 मिनट दे आर ऑल स्वीट, ठीक है। 1 मिनट क्या है वो, 1 मिनट में क्या है वो सारे के सारे स्वीट हैं और केयरिंग है, ठीक है। तो स्वीट और केयरिंग को अगर हमें कनेक्ट करना है ना तो वहां पे हम एंड यूज करेंगे ना कि बट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मिनट, दूसरी क्षण क्या है वो स्टैप कर देते हैं, तुम्हारी पीठ पे खंजर घोप देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो स्वीट और केयरिंग है इसको अगर हमें क्यूमुलेट करना है तो हमें क्यूमुलेटिव कंजक्शन एंड यूज करना पड़ेगा। एंड क्या आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन है, ओके। तो बट जो है वो आपका कॉन्ट्राडिक्शन देता है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें दो चीजों को कनेक्ट करना है तो हम कंजक्शन एंड यूज करेंगे ना कि बट, ओके। चलो, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट। Next one is question number fifth. In the housing society where I live, there is a nice house to let out. चलिए आंसर करें, कौन सा वाला आपका ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? टू लेट आउट आपका अंडरलाइंड पार्ट है और इसका आपको आंसर बताना। फटाफट से कमेंट करें भाई, क्या हो जाएगा क्वेश्चन है फिफ्थ का। सभी लोग कमेंट करेंगे और फटाफट जितने भी लोग प्रेजेंट है पहले तो भाई सेशन को लाइक करो, बाकी चीजें बाद में करना। सेशन को लाइक करो फटाफट से और शेयर कर दो इसे, जितने भी ग्रुप्स में आप लोग ज्वाइन है फटाफट से शेयर करो। सेशन को शेयर करके आओ और इसे लाइक करो फटाफट से। फिफ्थ का सी, ओके।
टू बी लेट आउट पैसिव वॉइस बनाओगे क्या? लेट आउट मतलब होता है आपका अटर या फिर एमिट। सॉरी। ओके, तो हमें रिवील नहीं करना। हमें बेसिकली जो नाइस घर है ना वो आपका रेंट पे है ये बताना है, ठीक है? तो उसके लिए हम टू लेट यूज करते हैं। ओके, ना कि टू लेट आउट। ठीक है, तो टू लेट आपका किसमें, ए में, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर है। टू लेट आपने सुना होगा ना कि ये घर टू लेट पे है, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो हमें चाहिए, क्योंकि लेट आउट मतलब होता है रिवील करना, अटर, एमिट, तो वो इसका मीनिंग है। टू लेट हम यूज करेंगे, इसका मतलब होता है रेंटिंग। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। सभी को आंसर करना है। डोंट स्टेप नियर द क्लिप्स एज एल्स योर लाइफ माइट बी थ्रोन इनटू ग्रेट पेरिल। सॉरी, आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6। और जो भी यहाँ प्रेजेंट है सबसे पहले क्या करो, सेशन को लाइक करके आओ। चलो, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6? देखो, डोंट स्टेप नियर द क्लिप्स एज एज योर लाइफ माइट बी थ्रोन नहीं होगा, इट शुड बी विल बी इन। ओके, ओके, विल बी इन हो जाएगा, विल फेस नहीं होगा, वुड बी प्लेस नहीं होगा। इंप्रूवमेंट चाहिए क्योंकि माइट बी की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि डोंट स्टेप नियर द क्लिफ एज बोल रहे हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है आपका फ्यूचर में होना चाहिए। ठीक है, और फ्यूचर में आपका माइट बी थ्रोन इनटू नहीं होगा, इट शुड बी विल बी इन। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो? तो बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको बस फंडास पता होनी चाहिए, क्या फंडा लगना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। यू कैन प्ले वीडियो गेम्स एंड पेंट और ड्रॉ फ्रॉम एनीवेयर। चलो, कमेंट करेंगे आंसर 60 सेकंड से। चलो, कमेंट करें फटाफट से। क्या हो जाएगा? यू कैन प्ले वीडियो गेम्स एंड पेंट और ड्रॉ फ्रॉम एनीवेयर। क्वेश्चन नंबर 7, बी। ओके, ओके, देखो, यू कैन प्ले लिख रखा है, तो यू आपका सब्जेक्ट है, कैन आपका क्या मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट में होता है, ठीक है? कैन प्ले वर्ट, वीडियो गेम्स इसका ऑब्जेक्ट है। एंड से एक और वर्ब है पेंट, ठीक है? ओके, एंड से क्या कनेक्टेड है आपका, एक और वर्ब है पेंट। ओके, और इधर क्या लग रखा है, पेंट और ड्रॉ। ठीक है, तो ड्रॉ भी आपका करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी आपका वर्ब है, ये भी आपका सही है।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्या और से कनेक्टेड है, ठीक है। फ्रॉम एनीवेयर आपका क्या, फ्रॉम प्रपोजिशन हो गया, एनीवेयर क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये भी आपका कोई दिक्कत नहीं, आपका एडवर्ब की तरह काम कर गया। तो कैन ड्रॉ नहीं चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि कैन इधर कॉमन है। ओके, तो एक मॉडल आपका काफ़ी है, तो कैन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। ओके, कुड ड्रॉ तो होगा नहीं पास्ट में, बी ड्राइंग का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, तो आपका ये बिल्कुल सही है और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है और कैन आपका कॉमन मॉडल यूज हो रखा है सारी वर्ब्स के लिए। सो इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, वरुण गोज फॉर सिनेमा एवरी फ्राइडे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन हैं। कमेंट करें कि फॉर सिनेमा में चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो डी मार्क करो, होना चाहिए तो ए बी सी में से मार्क करो। फटाफट से आंसर करो क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे सभी लोग, और सेशन को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है पहले तो लाइक करो सेशन को। लाइक नहीं आ रहा है सेशन पे, फटाफट से लाइक करो पहले सेशन को। वरुण गोज फॉर सिनेमा एवरी फ्राइडे। सो वरुण, वरुण आपका क्या सब्जेक्ट है, गोज आपका क्या वर्ब है। गोज आपकी क्या एक्शन वर्ब है, और ये क्या होती है आपकी इंट्रांजिटिव होती है, मतलब इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो जो सिनेमा है वो आपका प्लेस है एक बेसिकली, ठीक है। और प्लेस पे कोई जा रहा है तो वहां पे हम गो टू बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, गो टू बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका टू आना चाहिए प्रपोजिशन, और जिसका ऑब्जेक्ट होगा आपका सिनेमा। ओके, और जो सिनेमा है उसके साथ हम क्या करेंगे, द आर्टिकल यूज करेंगे, क्योंकि जो सिनेमा है वो क्या आपका एक गैदरिंग है, क्या आपका गैदरिंग है। तो उसके बाद आर्टिकल बिल्कुल करेक्ट है, तो इट शुड बी बी। ओके, गो टू द सिनेमा एवरी फ्राइडे। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। प्लीज ध्यान रखिएगा, सिनेमा अगर आपका सिनेमा यूज हो रहा है आर्ट के लिए, कला के लिए, तो इसके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। बट अगर गैदरिंग प्लेस की हम बात करें तो इसके हम द आर्टिकल यूज करते हैं। प्लीज इसे नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने सेशंस में डिस्कस करा हुआ है काफी बार। क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर सेड इट इज टाइम दैट योर डॉटर हैज लर्न हाउ टू राइट। हैज लर्नड क्या है आपका अंडरलाइंड पार्ट है, और इसको आपको इम्प्रूव करना है। कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो डी मार्क करो, इम्प्रूव करना चाहते हो तो ए बी सी मार्क करो। प्लीज कॉमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 9। 60 सेकेंड्स है, मैं काउंट कर रहा हूँ टाइम। द टीचर सेड, द टीचर आपका क्या सब्जेक्ट है। ओके, सेड आपका क्या वर्ब है। ओके, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच, सॉरी डायरेक्ट स्पीच नरेशन का एक क्वेश्चन है। ओके, सो इट इज टाइम दैट योर डॉटर, इट इज टाइम, ये आपका फ्रेज है। ओके, और एक और हो गया, इट इज हाई टाइम हो गया, इट इज राइट टाइम हो गया, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम हो गया, इट इज राइट टाइम, इट इज टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम। ओके, और ये जो भी आपकी फ्रेजेस यूज होती है ना, ये जब भी आपकी फ्रेजेस यूज होती हैं, तो इन फ्रेजेस के साथ हम क्या करते हैं, इन फ्रेजेस के साथ हम क्या करते हैं, पास्ट सब्जेक्टिव मोड हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं आपका, पास्ट सब्जेक्टिव मोड हम इनके साथ यूज करते हैं। पास्ट सब्जेक्टिव मोड आपका क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। ओके, तो जो हैज लर्नड है ये तो आपका परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, तो गलत हो गया।
तो मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आना चाहिए। जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है आपका लर्नड। ठीक है, आप देखो लर्नड कहाँ पे, सी वाला, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम। ये जहाँ पे भी दिख जाए ना स्टार्टिंग में सेंटेंस के, तो इसके बाद जो क्लॉज लिखा हो उस क्लॉज में आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वर्ब का सेकेंड फॉर्म आना चाहिए। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। जो लर्नड होता है ना, ये आपका एडजेक्टिव होता है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है वो लर्नड होता है, टी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए, एज सुन एज आई सॉ द फेरोसियस डॉग देन आई रन अवे। सो ये आपका अंडरलाइन पार्ट है, आपको बताना है। नो इम्प्रूवमेंट चाहिए तो डी मार्क करो, इम्प्रूवमेंट चाहिए तो ए बी सी में से मार्क करो। फटाफट कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 10। 60 सेकेंड से टाइम स्टार्ट हो चुका है, आंसर करिए। यहाँ पे जो एज सून एज है वो आपका कंजक्शन है। ठीक है, कंजक्शन है यहाँ पे। ठीक है, अब एज सुन एज हमने यहाँ पे यूज कर रखा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या होता है आपका, इसके बाद क्या होता है, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ, सॉरी। सॉरी, एज सुन एज जो है वो हमने कंजक्शन यूज कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, सो कंजक्शन क्या करता है, क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, आगे हमने देखा, आगे अब क्या पढ़ा, आई सॉ द फेरोसियस डॉग। अब यहाँ पे हमने क्या देख लिया, देन देख लिया। अब जो देन होता है ये भी कंजक्शन है। अब ये तो गलत हो गया भाई। ठीक है, अब जो है वो देन में तो हमें एरर मार्क नहीं करनी है, हमें जो अंडरलाइन पार्ट है ये है, इसमें एरर बताना है। अब जो देन होता है ना, ये कंजक्शन तो है, ये आपका कंपैरिजन का कंजक्शन है। ये तब यूज करते हैं जब आपका कंपैरेटिव डिग्री यूज हो सेंटेंस में, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या फिर आपका एडवर्ब यूज हो। अब देखो एबीसी में क्या है, नो सूनर लिख रखा है। नो सूनर जो है वो आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब है। ओके, और अगर कभी भी एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होता है, ठीक है, एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होता है, तो वहां पे आपका इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी, सब्जेक्ट से पहले होती है, ये इन्वर्जन होता है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड होगी। तो डिड आई सी देखो कहीं, तो सी वाले पार्ट में डिड आई सी है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड आई सी द फेरोसियस डॉग देन आई रन अवे। सिंपल था। ओके, इस जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उस कॉन्सेप्ट से आपको इसका आंसर करना था, और सी आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे, द अदर शर्ट विल कॉस्ट यू मोर। कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है तो डी मार्क करो, अदरवाइज ए बी सी मार्क करो। वही टाइम है 60 सेकेंड्स का। कमेंट करो, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ क्या होना चाहिए इसका आंसर। द अदर शर्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट है। विल कॉस्ट आपका क्या, वर्ब फ्रेज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। विल आपका मॉडल है भाई, और जो कॉस्ट है वो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। द अदर शर्ट विल कॉस्ट यू मोर। ओके, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question is question number 12. Having finished the voluminous novel, it was being put away by him. Question number 12 का आंसर करें सभी। Having finished the voluminous novel, it was being put away by him. ये जो पार्ट है ब्रैकेटेड वाला, ये अंडरलाइन जिसे मैं कर देता हूँ, इसको आपको बताना है कि अगर इसमें इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए तो डी मार्क कर दो,
इम्प्रूवमेंट चाहिए तो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई चूज करके पुट करो। चलो फटाफट कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्या हो जाएगा? देखो हैविंग फिनिश जो है ना, ये आपका क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। क्या है ये आपका? परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल से आपका कोई फ्रेज है स्टार्ट हो रहा है तो वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। मतलब ये पूरे को हम क्या कहेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहेंगे। ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज होता है ना, इस फ्रेज का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो ये होता है इट। ठीक है, मतलब इट ने फिनिश करा है एक नॉवल। ऐसा हो सकता है? नॉवल कोई फिनिश करेगा तो ऑब्वियसली बात है कोई लिविंग बीइंग होगा। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग तो पढ़ नहीं सकता, तो वो कैसे फिनिश करेगा भाई नॉवल? ठीक है, तो इस जो फ्रेज का जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वही गलत है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए था ना, वो आपका लिविंग बीइंग होना चाहिए था। तो इस वजह से जो आपका डी है वो तो गलत हो गया, ए भी आपका गलत हो गया। ठीक है, अब बी और सी में से आपका एक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ही से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस। इट मीन ही क्या कर सकता है? नॉवल फिनिश करने का काम कर सकता है। अब ही वाले में बी पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैड आपका क्या है? मेन वर्ब है, पुट आपका क्या है? मेन वर्ब है। ये तो बदतमीजी है, क्योंकि भाई दो मेन वर्ब थोड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये तो फिर से गलत हो गया ये वाला। अब ही पुट इट अवे, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, पुट आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। ठीक है, इट आपका क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो अब ये सही हो गया। तो ये पूरा का पूरा हटाओ, इसकी जगह लिखो ही पुट इट अवे। अब ये बिल्कुल सही हो गया। अब जो आपका पार्टिसिपल फ्रेज है ना, इसका जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस हो गया ही हो गया, मतलब ही ने नॉवल फिनिश करा और उसे दूर रख दिया। ओके, ए नहीं होगा विनीता। आई होप क्लियर हो गया होगा विनीता। इसका होना चाहिए सी। ओके, ये चीज मैंने डिस्कस करी थी सेशंस में अपने। क्वेश्चन नंबर 13। द हैप्लेस किड कट अ सॉरी फिगर इन हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें सभी लोग। हैप्लेस मतलब होता है आपका अनफॉर्चुनेट। ठीक है, अनफॉर्चुनेट, अनलकी। ओके, आंसर करो 13 का। कट अ सॉरी फिगर। ओके, सो यहाँ नहीं नहीं, कट अ सॉरी फिगर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। कट अ सॉरी फिगर मतलब होता है आपका ये आपका एक ईडियम है। ठीक है, इसका मतलब होता है टू क्रिएट एन अनफॉर्चुनेट इम्प्रेशन। ओके,
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कट ऑफ सॉरी फिगर बिल्कुल सही है। ओके, next one is question number 14. If you come across new words, you should look them up. इसको आपको अंडरलाइन पार्ट है, इसको बताना है इन द डिक्शनरी। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस सेशन का। फटाफट से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 14। If you come across new words, you should look them up in the dictionary. क्या हो जाएगा इसमें? कमेंट करो भाई 14 का फटाफट से, 60 सेकेंड्स है। ओके, तो यहाँ पे आपका एक फ्रेज यूज हुआ है, ठीक है। कौन सा फ्रेज? लुकअप। लुकअप मतलब होता है आपका सर्च फॉर। ओके, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। लुक देम अप बिल्कुल करेक्ट है, क्यों? क्योंकि लुक अप मतलब होता है सर्च फॉर, और वी कैन से फाइंड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ बुक और डेटाबेस, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नो एरर इन दिस सेंटेंस, क्योंकि लुक अप फ्रेज बिल्कुल करेक्ट है। और लुक देम अप मतलब उनको सर्च करना, जो वर्ड की हम बात कर रहे हैं। ओके, न्यू वर्ड्स जो जिनसे वो मतलब न्यू वर्ड जो आए उसके पास, ठीक है। सो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल डिस्कस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इसको अच्छे से आंसर करेंगे। शी कुड नॉट कोप बाय द हैवी वर्कलोड। चलो, इज इट? हाँ, यस, it is a phrasal verb. Look up means search for, or we can say find meaningful information in a book, or we can say in a database. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे सभी लोग। She could not cope by the heavy workload, ये प्रपोजिशन में आता है, बहुत फेवरेट एरर है एग्जामिनेशन का, बहुत बार पूछा गया है। किस तरीके से पूछा जाता है मैं बता देता हूँ, एग्जाम में आता है इस तरीके से, कोप अप विद, इस तरीके से आता है, ठीक है। कोप अप जो होता है ये गलत होता है, क्योंकि कोप जो वर्ड है, सिर्फ और सिर्फ कोप वर्ड, इसका मतलब होता है कैचअप, ठीक है। और इसका खुद मीनिंग में अप है, तो ये अप नहीं आता, ठीक है। कोप अप होता है, कोप अप मतलब होता है आपका टू हैंडल। ओके, सो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एग्जामिनेशन का फेवरेट एरर है, बहुत बार पूछा गया है। कोप अप विद दे देता है, तो उसमें जो अप है वो सुपर फ्लॉज है, क्योंकि कोप का मीनिंग ही कैचअप है, तो कोप के मीनिंग में अप लगा हुआ है, तो ये अप नहीं आएगा। कोप विद होता है, कोप अप, कोप विद मतलब होता है टू हैंडल, तो बाय प्रपोजिशन इज रॉन्ग। ऑफ जो प्रपोजिशन होता है, ये ओरिजिन का प्रपोजिशन होता है, ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। पार्ट का प्रपोजिशन होता है। अप अपवर्ड डायरेक्शन का होता है, ऊपर में, ठीक है। तो जो आपका होगा वो होगा आपका कोप विद। क्लियर है? तो आज के सेशन में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस करे और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करे, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हमने डिस्कस करें। जो नए हैं सेशन में वो शेयर करें और लाइक जरूर करें भाई, पहले लाइक कर दो सेशन को, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, मैं इतनी देर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि सेशन को लाइक करो पहले। ओके, शेयर भी करा करो सेशन को। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो आपका कल होगा। टाइमिंग जो है वो आपका 8 से 9 है। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड